झारखंड में आज चंपई सोरेन सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में पेश कर रही है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। राज्यपाल का अभिभाषण जारी है। विश्वास मत पर सदन में पक्ष और विपक्ष में चर्चा होगी, जिसके बाद विश्वास मत पर वोटिंग भी होगी। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सदन में विश्वास मत प्रस्ताव किया जाएगा। देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। Various types of assistance have been provided to 168 migrant laborers. State government is also trying to have MOU with the 10 different states of the country with the aim of providing facilities and rights to migrant laborers in the other states. To develop the skills of the youth of the state, Birsa Black Level Institute for Rural Skill Acquisition scheme has been started with the aim of taking skill development to the doorsteps of the deprived in remote rural areas and making them economically self-reliant. Currently, the scheme is being operated through listed service providers in 80 blocks of the state. To motivate and sustain the morale of youth who have been unable to get employment within 3 months of successful certification, after receiving the skill development training, the state government is giving them employment incentive allowance. An incentive allowance of rupees 1,000 per month is being given to male youth and 1,500 per month to the female youth, disables, transgender through the DPT for a maximum period of 1 year. The government is continuously making efforts to create a favorable industrial environment in the state to pave the way for the capital investment and create employment opportunities. It is the result of the efforts of the government that MOUs have been signed with the Tata Cummins Private Limited for rupees 350 crore, with the Tata Tin Plant Limited for 350 crores and with Varun Beverages for rupees 456 crore investment. The government has launched Jharkhand MSME Promotion Policy 2023 and Jharkhand Export Promotion Policy 2023 to promote the MSME sector in the state. Also, under Information Technology, Jharkhand IT Data Center and BPO Investment Promotion Policy 2023 and Jharkhand Startup Policy 2023 have been notified, which will provide a great boost to entrepreneurship among youths in the field of IT and ITES and startup. Our state is the leader in the Tasar silk production. In the current year 2023-2024, 780 metric tons of Tasar silk has been produced so far against the target of 1,000 metric tons. The importance of Tasar silk in the state can be gauged from the fact that the theme of the tableau on the occasion of Republic Day ceremony 2024 in Kartavya Path, New Delhi, encompassed the cultural, traditional and historical splendor of Jharkhand Tasar silk. Jharkhand State Khadi Village Industries Board is working for the promotion and development of Khadi products in the state and thereby generating self-employment in the rural areas. Accelerating the process of appointments in the state, requisition for appointment in 46,150 vacant posts in various categories has been sent to Jharkhand Staff Selection Commission, out of which advertisements have been published for the appointment of 45,574 posts. Advertisement has been published for direct and backlog appointment to 349 posts under various services for Jharkhand Civil Services Competitive Examination 2023. State government is committed to providing high quality physical infrastructure to accelerate the pace of development. Our government is laying a network of quality roads across the state in the financial year 2023 and 2024. 81 roads, 02 bridges and 03 roads over bridges schemes have been duly inaugurated at a cost of rupees 2096.
and 2026 crore. Apart from this, the foundation stone of 64 road and bridge schemes worth 1,714 crore have been laid in the approved schemes. Till now, about 1,410 kilometers of roads have been widened, strengthened, reconstructed with riding quality improvement, and 0 to high level bridges and 03 ROB have been constructed. Under the Mukhyamantri Gram Sadak scheme, target of connecting 90 villages having population of more than 1,000 as per the 2011 census with Pakka road has been fixed in the financial year 2023-24 against the target of completion of 1,000 kilometer road. The work for the construction of 549 kilometer road has been completed so far. The government has fixed the toll exemption permit fee, fitness check fee and a vehicle registration fee at rupees of 01 for buses operated under the Jharkhand Mukhyamantri Gram Gadi Yojana 2022. Besides 5% interest on the loan amount for purchasing new buses in being given in the state government. Energy. तो झारखंड के बाद बिहार में भी फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। अब बिहार कांग्रेस के विधायकों का हैदराबाद टूर शुरू हो गया है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ताकि कोई उनकी बोली नहीं लगा सके। तो विधायकों के इस टूर के पीछे की वजह टूट का डर बताया जा रहा है। बिहार में 12 फरवरी को एनडीए की सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और बदले सियासी समीकरण में आरजेडी फिर से सबसे बड़ा विरोधी दल है। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में कांग्रेस दिख रही है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक फ्लोर टेस्ट से पहले टूट ना जाए। ऐसे में झारखंड की तर्ज पर बिहार कांग्रेस के विधायकों को भी हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद के बाहरी इलाके इब्राहिमपट्टनम स्थित एक रिजॉर्ट में रखा गया है। कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों के टूटने का डर है। ऐसे में पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और लिहाजा विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले तक बिहार के बाहर ही रखेगी और सीधे टेस्टिंग के दिन ही इनके बिहार में लैंडिंग कराने का प्लान है, ताकि एकजुट होकर कांग्रेस के सभी विधायक एनडीए की सरकार के खिलाफ वोट कर सकें। अब कांग्रेस विधायकों को हैदराबाद भेजने पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो हैदराबाद में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 16 विधायक जो हैं वो हैदराबाद के लिए जा रहे हैं। विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया है। आपको बता दें कि शक्ति परीक्षण से पहले शिफ्टिंग कराई गई है। इन कांग्रेस को डर है कि फ्लोर टेस्ट से पहले इनके विधायकों में टूट ना हो जाए। हालांकि अगर बहुमत की बात की जाए तो नीतीश कुमार को टेंशन नहीं है। अगर बात की जाए सिर्फ जेडीयू और बीजेपी, तो इन दोनों के अगर गणित को देखें तो ये पर्याप्त है बहुमत के लिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस एहतियातन अपने जितने भी विधायक हैं उनको हैदराबाद शिफ्ट कर रही है। झारखंड की राजनीतिक स्थिति के तर्ज पर अगर देखें तो 16 विधायक जो वो हैदराबाद पहुंचे हुए हैं, वो वहां पर रिजॉर्ट में रखे गए हैं। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अभी झारखंड में देखी गई थी और अब देखिए बिहार में भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। तो ऐसा पहले भी हुआ है कि जब टूट के डर से हैदराबाद शिफ्ट किए गए हैं विधायक। सब विधायक हम लोग आए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बधाई देंगे नई सरकार के लिए। कहाँ के लिए जा रहे हैं, क्या है? कहाँ के लिए जा रहे हैं? हैदराबाद घूमने आए हम लोग, सभी विधायक लोग। कहाँ पर आपको ठहरा रहे हैं? वो हम नहीं जानते, हम लोग कहीं भी होटल में ठहर जाएंगे। ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। डरे सहमे लोग हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास जीत करके आता है और उस विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखना, ये जनादेश का अपमान है, विधायकों का अपमान है। घूमेंगे, वहाँ के नवाबों के शहर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं। अरे भाई, उनके वोट की जरूरत कहाँ है? हमें 128 MLA हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार बनी है और ये 2020 में बनी है। ये बीच में चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे ना, वो सबका इलाज होगा, चिंता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खुलेंगी। पिछली सरकार में जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा सबका इलाज होगा। सम्राट चौधरी ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला बोला और इनके बयान पर विपक्षी नेताओं ने भी पलटवार किया है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि 2024 में केंद्र की सत्ता से हटते ही
सभी घोटालों की फाइल जो है वो खुलेगी। तो वहीं जेडीयू ने बचाव करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने हमेशा से भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं किया है। सारा फाइल खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग जितने लोग सरकार में थे ना, ये सब ठेकेदार वाले सरकार थे, सबका इलाज होगा। और ये बालू माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, शराब माफिया से जुड़े लोग, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। और ये जो लालू प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हैं ना, खेला होगा, खेला के लिए हम लोग खिलौना उनको जरूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। पहले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में अपने सरकार बचाने का पहले श्योर कर लें, इसके बाद ही ये ज्ञान दें। और तेजस्वी यादव जी ने जो ऐलान किया है वो ऐसा खेला होगा कि कौन खिलौना से खेलेगा और कौन आग से खेलेगा, ये पता चल जाएगा। सम्राट चौधरी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2024 में सरकार बदलने वाली है केंद्र की, और सारी फाइलें खुलेंगी। राफेल घोटाले की भी फाइल खुलेगी, और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सारे के सारे जेल में होंगे। फाइलें तो खुलेंगी भैया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासन में किसी विभाग में गड़बड़ी हो और कार्रवाई न हो, ऐसा संभव नहीं है। अब अगर आने वाले समय में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की समीक्षा की बात होती है तो इसमें आपत्ति कहां है। अगर कोई गड़बड़ी होगी, जिनकी भी जवाबदेही हो, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो अभी आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, और बात करें अगर सम्राट चौधरी की, तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि वो सब पर कार्रवाई करेंगे जो भ्रष्टाचारी हैं, और जितने भी बालू माफिया उन सभी पर। तो फुल फॉर्म में दिख रहे हैं सम्राट चौधरी, भ्रष्टाचारी की सारी फाइलें खुलेंगी, उन्होंने ये कह दिया। और उन्होंने कहा है कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। जितने भी लोग पिछली सरकार में थे, सब ठेकेदार वाली सरकार थे, बालू शराब माफिया की सरकार थी, अब सबका इलाज होगा, उन्होंने कह दिया है। और जब वो विपक्ष में थे सम्राट चौधरी, तब भी बड़े ही मुखर होकर के कहते थे शराब माफियाओं पर उन पर कहते थे कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अब वो सरकार में है, हालांकि गृह विभाग जो उनको नहीं मिला, लेकिन इनकी छटपटाहट थी कि गृह विभाग मिले ताकि वो किस तरीके से कार्रवाई करेंगे माफियाओं पर, तब वो दिखाते। कई बार इन्होंने कहा है कि हमें सरकार में आने दीजिए, फिर दिखाएंगे कि बुलडोजर चलवाएंगे और जो माफिया है उन पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। तो देखिए, एक एक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह दी है सम्राट चौधरी ने। तेजस्वी यादव